कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर, वर्ष नंबर 28-29। 28-29 नंबर श्लोक में कल हमने चर्चा किया था। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। श्री शुद्ध गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति। तो इसके हम लोग ऑलमोस्ट इसमें 8 चीजें व्यक्त की गई हैं जो भगवान वासुदेव है। 8 जितने भी धार्मिक कार्यकलाप में 8 चीजें ही प्राय लोग करते हैं। तो इस सब के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वासुदेव परो धर्म, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट पैराग्राफ है। As explained before, the original personality of God had expanded himself by innumerable forms. Such expansion of forms is made possible by his various energies. His energies are also multifarious, and his internal energies are superior and external energies inferior in quality. They are explained in the Bhagavad Gita as the para and apara prakritis. So his expansions of various forms which take place via the internal energies are superior forms, whereas the expansions which take place via the external energies are inferior forms. The living entities are also his expansions. The living entities who are expanded by his internal potential are eternally liberated persons, whereas those who are expanded in terms of the material energies are eternally conditioned souls. Therefore, all culture of knowledge, austerity, sacrifice, and activities should be aimed at changing the quality of the influence that is acting upon us. For the present, we are all being controlled by the external energy of the Lord, and just to change the quality of the influence, we must endeavor to cultivate spiritual energy. In the Bhagavad Gita, it is said that those who are Mahatmas, or those whose minds have been so broadened as to be engaged in the service of Lord Krishna, are under the influence of the internal potency, and the effect is that such broad-minded living beings are constantly engaged in the service of the Lord without deviation. That should be the aim of life, and that is the verdict of all the Vedic literatures. No one should bother himself with fruitive activities or dry speculation about transcendental knowledge. Everyone should at once engage himself in the transcendental loving service of the Lord. Nor should one worship different demigods who work as different hands of the Lord for creation, maintenance, and destruction of the material world. There are innumerable powerful demigods who look over the external management of the material world. They are all different assisting hands of Lord Vasudeva. Even Lord Shiva and Lord Brahma are included in the list of demigods. But Lord Vishnu or Vasudev is always transcendently situated. Even though he accepts the quality of goodness of the material world, he is still transcendental to all the material moods. The following example will clear that matter more explicitly. In the prison house, there are prisoners and the managers of the prison house. Both the managers and the prisoners are bound by the laws of the king. But even though the king sometimes comes in the prison, he is not bound by the laws of the prison house. The king is therefore always transcendental to the laws of the prison house, as the Lord is always transcendental to the laws of the material world. तो इसमें यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत ही क्लियर स्पष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के 2 प्रकार के विस्तार होते हैं। एक को परा प्रकृति बोलते हैं और एक को अपरा प्रकृति बोलते हैं। परा प्रकृति मतलब आध्यात्मिक और अपरा प्रकृति मतलब भौतिक। तो जो परा प्रकृति के एक्सपेंशन होते हैं, विस्तार होते हैं, वो सुपीरियर होते हैं, यानी उत्कृष्ट होते हैं। और जो अपरा प्रकृति के विस्तार होते हैं वो निकृष्ट होते हैं, इंफीरियर होते हैं। अपरा प्रकृति के विस्तार में ये बहुत बहिरंगा शक्ति, भगवान की भौतिक शक्ति आती है, जिससे ये पूरा भौतिक जगत अनेक
अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की जाती है। और इसी अपरा प्रकृति के प्रभाव में जब जीवात्माएं आ जाती हैं, हालांकि जीवात्मा, हम सब जो जीवात्मा है, वो भगवान की परा प्रकृति है, सुपीरियर एनर्जी है। लेकिन इस भौतिक अपरा प्रकृति के नियंत्रण में आने के कारण ये भी अपने परा प्रकृति यानी सुपीरियर नेचर को खो देती है, या खो नहीं देती है, या वो ढक जाता है, छुप जाता है फॉर द टाइम भी, कुछ समय के लिए, जब तक वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में रहता है। और भौतिक प्रकृति के प्रभाव में रहने के कारण वो भी जो है इन्फीरियर क्वालिटी यानी निकृष्ट स्वभाव को स्वीकार कर लेता है। लेकिन भगवान और भगवान के जितने भी विस्तार हैं, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, चाहे उस जो आध्यात्मिक जगत में हो या इस भौतिक जगत में, वो सब के सब हमेशा परा प्रकृति में रहते हैं, परा स्वभाव रहता है उनका, यानी वो स्पिरिचुअल रहते हैं, सुपीरियर क्वालिटी में रहते हैं। वो कभी भी इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते। यहाँ तक कि जब वो भगवान या भगवान के कोई भी अवतार जब इस भौतिक जगत में आते भी हैं कुछ कार्य को करने के लिए, कुछ मिशन की पूर्ति के लिए, तो उस वक्त भी वो जो है परा प्रकृति होते हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी में होते हैं, आध्यात्मिक स्थिति में विद्यमान रहते हैं। वहीं जो जीवात्माएं हैं वो इस भौतिक प्रकृति के अधीन होने के कारण वो तीन गुणों में फंसे रहते हैं। यहाँ तक कि जो देवी देवता भी हैं, ऐसे देवी देवता जो जैसे भगवान शिव, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं का क्या कहना, तो वो भी इस भौतिक जगत के ही नियंत्रण में कार्य करते हैं। और इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं प्रभुपाद जी, अंतिम निष्कर्ष के रूप में बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में इसीलिए जितने भी प्रकार के यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तपस्या, धर्म, गति, वेद, ये सब दिया गया है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो बद्ध जीवात्माएं संसार में फंसे हुए हैं, तो वो किस प्रकार से अपने आप को वापस से अपरा प्रकृति से परा प्रकृति की तरफ जा सके। अपरा प्रकृति मतलब ये भौतिक जगत, भौतिक प्रभाव से मुक्त होकर के परा प्रकृति मतलब आध्यात्मिक स्तर पे जा सके, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सके, और अपने स्वाभाविक स्थिति में इस प्रकार से रह करके भगवान की सेवा में संलग्न होते हुए असली दिव्य आनंद को नित्य सनातन रूप से प्राप्त कर सके, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सके। जब कोई व्यक्ति अपरा प्रकृति के प्रभाव में रहता है, अपरा प्रकृति मतलब भौतिक जगत, भौतिक जगत के प्रभाव में रहता है, तो उसको जो सुख मिलता है वो ब्रह्म सुख नहीं होता है, वो भौतिक सुख होता है, क्षणिक होता है और भ्रामक, इल्यूजरी हैप्पीनेस होता है। लेकिन जब इस प्रकार के वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए कोई व्यक्ति परा प्रकृति के ऊपर पहुंच, परा प्रकृति के स्तर को प्राप्त करता है, तब वो वास्तव में व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर पाता है और भगवान के धाम को प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार से यहाँ पे इस इन श्लोकों में ये निष्कर्ष दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति को जो भी ज्ञान, तपस्या, यज्ञ और इन सब का पालन कोई करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान वासुदेव का शरण प्राप्त करके अपने आप को इस भौतिक बंधन से मुक्त करा के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सके। ना कि अगर कोई व्यक्ति ये जितने भी यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत ये सब है, ये केवल अपरा प्रकृति के प्रभाव में रहते हुए करेगा, देवी देवताओं के लिए करेगा, तो निश्चित रूप से वो यहीं पे फंसा रह जाएगा, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और इस चीज को समझाने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, हालांकि वो भगवान के मैनेजर्स हैं, एजेंट्स हैं, सेवक हैं, और वो इस जगत में उनको नियुक्त किया गया है इसको संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए, लेकिन फिर भी वो भी इस जगत के नियम पे बंधे हुए हैं। जैसे कोई जेल होते हैं, भौतिक जगत जेल के समान इसको तुलना किया गया है। तो जेल होता है, तो जेल में एक होते हैं कैदी, तो कैदी भी उस जेल के नियमों में से बंधे हुए हैं, और उस जेल में रहने वाले जो पुलिस हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, जेल को संभालने के लिए जो मैनेजर्स हैं वहाँ के, वो भी जेल के नियम में बंधे हुए हैं। हालांकि वो कैदी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जेल के नियम में वो भी बंधे हुए हैं। लेकिन जो राजा होता है वो जेल के नियम से परे है, वो अगर जेल में कभी आता भी है तो उस जेल के नियम और कानून से वो बंधा नहीं रहता है। उसी प्रकार से हर प्रकार के जीवात्माएं इस संसार में कैदी के रूप में और बंधे हुए हैं तीन गुणों में। और जो देवता हैं वो मैनेजर्स हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो भी इस भौतिक संसार के अंदर ही बंधे हुए हैं। भौतिक संसार के जो तीन गुण हैं
उनसे प्रभावित होते हैं, उनके प्रभाव में रहते हैं, उनके कंट्रोल में रहते हैं, नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव जब कभी प्रकट भी होते हैं इस भौतिक संसार में, तो वो इसके प्रभाव में फंसते नहीं हैं, और वो केवल और केवल अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे अवतरित होते हैं, आते हैं कुछ कार्य, कुछ मिशन को पूर्ति करने के लिए, और बिना प्रभावित हुए वो कार्य करके वापस से सभी जीवात्माओं को प्रेरित करके यहाँ से वापस से अपने धाम को जाते हैं।